أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ 7 دی 26ویں آیت پاک وچ فرمایا خواہش تے عمل نہ کریو تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی۔ اللہ سونا چونکہ اپنے بندے تے بڑا مہربان ہے اور بہت محبت بھری نگاہ نہ تمام انسانوں دیکھ رہا ہے کہ واپس پلٹے آنا، کفر چل نکلنا، منافق چل نکلنا، نافرمانیاں چل نکلنا اور شیطانہ دے بنائے نصاباں چل نکلنا اور میرے بنائے نصاب قرآن حکیم تے عمل کرنا اویں جویں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، یعنی قرآن و سنت نو زندگی دا نصاب بنا لینا۔ یہی وہ مکمل نصاب حیات ہے جڑا انسان نو ہر طرح دیاں کامیابیاں، فلاواں، برکتاں، خیراں عطا کردا ہے۔ لیکن یہ سارے جنہیں دنیا دے پروگرام نے سارے انسان نو خواہشات چڑھ جاندے رہن، دنیا طالب بناؤندے جدے واسطے ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار ہے، یہ طالب کتے نے، اور آپ فرماؤں دے کہ حب دنیا راس کل خطیہ، سارے فساداں دی جڑ یہی ہے دنیا دی محبت۔ جب تک انسان دنیا دی محبت چوں نہیں نکلدا کدے کوئی بھی خیر حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ماسو اللہ ارجان والے نفس و مارا ہے، یہ فرعون اور شداد ہے اور یہ سب تو بڑا شیطان ہے، یہ نفس و مارا اور یہ اندر پیدا ہونے والیاں خواہشاں ہی انسان نو تباہ و برباد کر دیاں، دنیا طالب بنا دیاں۔ ہر خواہش شیطان دے آن دا ایک دروازہ آیا اور نفس و مارا شیطان دی جائے قیام ہے اور یہی خناس جڑا انسان دل دے کھبے پاسے بیٹھا وسواس الخناس جڑا قرآن کریم دی سب تو آخری سورہ رب نے دسیا ہر ویلے انسان دے اندر برے خیالات پا کے انہوں دنیا طالب بناؤن دی کوشش کر دیا، شیطان دی پیچھے لاؤن دی کوشش کر دیا۔ اور جب تک انسان خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق اور معاصو اللہ چوں دنیا چوں قلباً کلی طور سے نہیں نکلتا، کدے بھی اپنے فطرت قائم نہیں ہو سکتا اور نہ رب سونے دی بارگاہ تک پہنچ سکتا۔ یہی فطرت ہے، حقیقی سکون جڑا ہے وہ دیدار مولا نہ حاصل ہونا تے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آنا، سکون دا پروگرام شروع ہو جاندہ ہے اور دید مولا نہ حقیقی سکون لبدا۔ اس واسطے قرآن حکیم جی بھی رب سونے دسیا کہ جڑے اتھے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، یعنی اج اگر دیدار مولا دنیا تے نصیب نہیں ہویا تو پھر آخرت وچ بھی نہیں ہونا۔ یہ دنیا تو آزمائش ہے، دنیا ساری معاملے آزمائش ہے۔ کائنات دی ہر چیز دی تقسیم اللہ سونے کیتی ہوئی ہے، جہاں جو نصیب ہے مقدر ہے، ہر حال چون ملنا۔ اور یہ کائنات کھلارے مختلف لوگوں کو مانتا رکھیاں ہوئی ہیں، اپنے اپنے وقت نہ ہر شے پہنچنی ہے۔ یہ پیچھے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کوئی لوڑ نہیں، دنیا دی غلامی کرنے کوئی لوڑ نہیں۔
गुलामी करनी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी करो, अल्लाह दा सोने दी गुलामी करो। आतीउल्लाह आती रसूल ते कल्बन इहदी रूह दे मुताबिक अमल करो। सही अकीदा जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स सरफरोश मुत्तकी खुदा मस्त उलमा मशाइख दी सुबह च बैठो, उन्होंने को कुरान सुन्नत फिक़ह दा इल्म हासिल करो, फिर रूह के मुताबिक इते अमल करो और अपना अंदर नूरानी करो ताकि रूह इस खाकी जिस्म च निकल के बातन च परवाज दे काबिल हो जाए और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री दी नेमत हासिल करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद ना हजूरी खुदा जल्ला शानहू तक रसाई हासिल होवे और दीदारी मौला दी नेमत मिले। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दी दौलत कुबरा बख्शी, तो मैं रब सोने की बारगाह च अर्ज़ की गल्ला सोने इल्म दा इल्म की है। अल्लाह सोने फरमाया गौसे आज़म इल्म दा इल्म, इस इल्म तो नावाकिफ होना है। सुबहान अल्लाह। और आप फरमा दे इसी तरह फिर मैनू हाज़री दा शरफ मुयसर मिल होया। रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म इस बंदे आस्ते खुशी है जिदा दिल जड़ा मुजाहिदे तरफ झुक गया, और उस बंदे आस्ते वैल है और अफसोस है जिदा दिल जड़ा शहवात की तरफ झुक गया। इन्हां दोनों फरमाना दे अंदर बड़ी प्यारी गल दसी अल्लाह सोने ने कि जब तक इंसान मासो अल्लाह और इहदे इल्मां चों और अपने आप चों नहीं निकलदा तो लेकिन मुजाहिद ना निकल होना कि अपने पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी उन्होंने को तौहीदी नूर निस्बत की नेमत हासिल करके मसनून रियाज तो मुहजादात मुराकबात असबा के वलायत करे, क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा है दीदारे मौला है। जब तक इंसान मुजाहिदा नहीं करता कामयाब नहीं होता, तो ना ही नफ्स से फतह पा सकता, क्योंकि नफ्स शैतान और दुनिया दुश्मन इंसानियत दियां नबियां दियां अल्लाह सोने दियां, और शैतान जेड़ा खुला दुश्मन है सब दा। जब तक इंसान इन्हां चों नहीं निकलदा और इन्हां नूं पहचानदा नहीं, इन्हां नूं छड्ड नहीं सकदा। जब तक रब सोने नहीं पहचानदा तो रब सोने तरफ दौड़ नहीं सकदा। हाल रब सोने हुक्म कुरान कीम दस्या फफिरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। अल्लाह सोने कुरान करीम सारा प्रोग्राम दे दिता। तो जिहड़ा शख्स भी कुरान सुन्नत नूं छड्ड के शैतानां दे बनाए नसाबां दे पिछे लगेगा, उन्होंने कदे भी सिराते मुस्तकीम नहीं मिल सकती, कदे भी मकसद हयात हासिल नहीं कर सकता, कदे भी इश्क इलाही की नेमत हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक इंसान इश्क मौला की आबियारी नहीं करता, सिर तो लैके पैरों तक इरादा इलाही नहीं बनता, मर्जी मौला नहीं बनता, फिर इलाही नहीं बनता, ये कदे भी इन्हें सोबते मौला नसीब नहीं हो सकते। सच्चा दरवेश तो हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और मुआये च रहिंदा, कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा। तो कोशिश भी करे तेरे मासो अल्लाह दा ख्याल नहीं आंदा, चूंकि सच्चा दरवेश चूंकि अपने इरादे इख्तियार नूं अपनी हर मुराद मर्जी तमन्ना आरजू रब सोने दे कुर्बान करके हर लम्हा मुर्दा बन के अल्लाह सोने दे हजूर हाजिर रहिंदा। तो फिर ये उत्ते अफाली सिफाती और जाती अनवारो तजलियात बरसते ने, ये अंदर इन्हां अनवारात नूं जज़ब करदा है
और ये अंदर हर जुलमाती लहर निकलती है, अंदर नूरानी हुंदा। और ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲਤਾਇਫ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਾਲ ਲੁਥੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਤਨ 'ਚ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸੂਤੀ ਇਸ ਆਲਮ ਖਲਕ 'ਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ਼ ਕੱਸੇ ਸਕਲ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲੋ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਫਨਾ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਚੂੰਕਿ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੌਹੀਦੀ ਨੂਰੇ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਤੌਹੀਦੀ ਰੰਗੇ ਸਿਬਗਾ ਤੁੱਲਾ ਚੜ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁਸਨ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਜ਼ਾਤੇ ਬਾਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਤਰਫੋਂ ਆ, ਹਰ ਫੇਲ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫੋਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਵੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਜਹਾਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕਲਬਨ ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਤਰਫ ਮੁਰਾਕਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਰਜ਼ਾਈ ਮੌਲਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਰਬੁਲ ਇਜ਼्ज़त ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ तमाम ਮਾਮਲਾ ਸੋਹਣੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਖਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਖਲੂਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। सब तो अलग हो के अपने दिल के हुजरे अंदर झाती पाउंदा। जिवें हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ये तन रब सच्चे दा हुजरा विच पाक फकीरा चाहती हो। अल्लाह सोहना इत्थे मिल जांदा इहनूं। फिर कुरान हकीम च रब सोहने दस्सिया कि मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, तू जिधर भी रुख करे मैं उधर मौजूद हाँ। तुसीं क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां ही? मैं तुहाडे नफ्सां च तुहाडे अंदर है। जिवें हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अंदर भी हो ते बाहर भी हो, बाहू कित लबेंदा हो। लेकिन जब तक इंसान तालिबान दुनिया चो इन्हां फासकां फाजरां ज़ंदीकां दी सोबतों तो अलग नहीं हुंदा, अपनी सारी बातनी पूरी हिम्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ नहीं लाउंदा ते अपने वक़्त दी, अपने हवास दी, अपने ज़हन दी, अपने कल्ब दी कड़ी निगरानी नहीं करता और बुरे ख्यालों दी बदबू तो नहीं बचता ते अपने हर साह का मुहासबा नहीं करता। कदे नूं नूरे तौहीद दी वो नेमत हासिल नहीं हो सकती। और कुरान दा फलसफा उम्मत वाहिदा दा वहदत इंसानियत इहनूं समझ नहीं आ सकता, क्योंकि अजीमत दी जिंदगी गुजारेगा, शैतानी रस्मों रवाजां चों निकलेगा, बिदआत चों निकलेगा, कुरान और सुन्नत नूं अपना रहनुमा बनाएगा। जिवें अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे तो दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान करीम, दूसरी अपनी सुन्नत। अगर इन्हूं घुट के फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। ते जे इन्हूं छड्ड के इंसान जिहड़ा शैतानां दे बनाए, इंसानां दे बनाए, गुमराह फिरकियां दे बनाए, गैर शरा दो नंबर बाबियां दे बनाए नसाबां दे पिछे दौड़ेगा तो फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। अजीमत दी जिंदगी ही अमले कुरान और सुन्नत ही इनू
अरूज दीयां बुलंदियां ते पहुँचा सकदा। मुस्लिम उम्मा दे ज़वाल दी वजह भी यही है कि इन्हां कुरान करीम तो मुँह मोड़िया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा तो मुँह मोड़िया, तां उम्मत मुसलमान ज़वाल दी शिकार हुई है। ते अज मुसलमानों ने टुकड़े तकसीम करता, नस्ली, लसानी, इलाकाई, फिरका वाराना और तबकाती प्रोग्राम में तकसीम करके इस वेले जो मुस्लिम उम्मा का हाल है पूरी दुनिया से गौर करके देख लो। शाम साढ़े सामने है, मिस्र, अफगानिस्तान, एरिट्रिया, फिलिपाइन, कश्मीर, फलस्तीन, इराक, ईरान जो हाल है साढ़े सामने है कि शैतानी कुव्वतां किस तरह मुसलमानों को जलील कर रही हैं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि कुरान सुन्नत को छड्डिया, राह मौला ने छड्डिया, शैतानां दे प्रोग्रामां दे पिछे लगे ते ज़वाल दा शिकार हो गए। क्योंकि जिन्ने भी ये शैतानी प्रोग्राम है सब इस्तेमारी और इस्तेहसाली ने, इंसानियत कुछ है और ये सारे ज़वाली प्रोग्राम ने। इस वास्ते इन्हां दे अंदरों इंसानियत की मोहब्बत निकल गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल गई, अल्लाह सोने की मोहब्बत निकल गई, जिहदे बारे रब सोने कुरान करीम च फरमाया। ईमान दा रूह यही है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि ईमान वाले वो जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं। और ये प्यार कमाल नूं तां ही पहुंचदा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुकम्मल इत्तबा हो, फत्ता वो नहीं जो इंसान फना होगा, फिर अल्लाह सोने दे नाल मोहब्बत करेगा। तो चूँकि मुसलमाना ने, मुस्लिम उम्मा ने पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं छड्डिया, जिहड़ा पैगाम अल्लाह सोने दे के भेजिया सी कि मेरे बंदियां तक ये पैगाम पहुँचा दिओ। आपने भी उत्ते अमल किया, सानू भी वो पैगाम साढ़े तक पहुँचाया। वो पैगाम है तौहीद दा, कुरान हकीम दा। ये वो जिंदा किताब है, मेरे प्यारे नबी दा जिंदा मौजज़ा है। अमल करके ही रूज हासिल कर सकता है इंसान और अल्लाह सोने की बारगाह च हाजिर हो के दीदार मौला हासिल कर सकता है। जब तक इंसान अपने अकायद, अबादात, मामलात, अखलाकियात कुरानी नहीं करता, मुहम्मदी नहीं करता, अपनी सोच आफाकी नहीं करता, अफलाकी नहीं करता, तो कदे भी इनू जारी बात नहीं, बरकात, कैफियात, खैरां, फलामा इनू कदे नहीं मिलणगियां। ना ही ये अंदर मुजाहदाना तड़प पैदा होनी है, हरारत पैदा होनी है, ना ही तौहीद दा वो कैफ, लज्जत, सरूर, विजदान और महवियत हासिल होनी है। जिन्ने भी शैताना ने साढ़े अंदर गुमराह फिरके बनाए, नवे नवे खाना साज तबकाती मॉडल इस्लाम बना के पेश कर रहे हैं, जिहदी शैतानी रंग अमेजी है, बजाए अपना एहतसाब करन दे ये कुरान सुन्नत नूं अपने सांचे ढालना शुरू करता है इन्होंने। जिवें कि इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेतौफीक। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। कुरान में हो गोता ज़ैना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको था जिद्दत किरदार। तू कुरान की लज्जत लैके तो वेख, तेन किसी निसाब की कदे कोई जरूरत नहीं हो, लेकिन कुरान ते अमल उवें ही करना जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीता और जमहूर अहले सुन्नत व जमात ने कीता और सच्चे अल्लाह वाले ने कीता। ते गुमराह फिरकियां दे बनाए प्रोग्राम जिहड़े आ ये तां गुस्ताख बेअदब ने अल्लाह सोने दे, अल्लाह दे प्यारे नबी दे। इन्हां लोगों का कुरान करीम ना मजाक कर रहे हैं, जिवें इमाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, कुरान को बाजीचा एतफाल बनाकर चाहें तो करें एक नई शरीयत ईजाद, तमद्दन, तसफ़्फ़ुफ़, शरीयत, कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। ये सारे मासो अल्लाह दे विच उलझाउण दा प्रोग्राम है। हालांकि रब सुने दा आख्या फफ़िरुल्लाह कुरान हकीम दे अंदर दौड़ो अल्लाह की तरफ, लेकिन रब दी पासे जाण दे इन्हां ने बल्कि उल्टा शम्मा तौहीद नूं बुझाउण दी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बुझणी नहीं।
क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले ने इलम चक्या होया तौहीद दा। ये तौहीद दे झंडे, तौहीदी नूरे निस्बत दे झंडे इन्हां दिलां ही लगे हुए ने। दुनिया की कोई कुव्वत इन्हां खत्म नहीं कर सकती, ना डरा सकती है, ना खरीद सकती है, ना चुका सकती है, ते ना ये तूफानां दी परवाह करते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हां नूं वो जुर्रत, हमीयत, गैरत बख्शी है। जिवें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है, हवा है गो तुंदो तेज, चिराग अपना जला रहा है, वो मर्दे दरवेश जिसको दिया है हक ने अंदाज़े खुसरवाना। इन्हां लोकां ने तौहीद दी शम्मा, ये तूफान इन्हां दे बुझा नहीं सकदे, इन्हां दे बनाए निसाब जिहड़े है। ते जिन्ना दिल है जोर ला लेना, क्योंकि सच्चा अल्लाह वालियां दे अंदर तौहीदी मुहम्मदी जनूनी इश्क दी अग मौजूद है। ते जेड़ा इन्हें तरफ होंदा फिक्र शैतानी, ये अग उन्हें जला के राख कर दिंदी है। ते मुर्दा दिल कुछ नहीं कर सकते, जिन्हें काफर मुनाफिक है, इस्लाम दुश्मन है। ते सच्चा दरवेश हर वेले ज़ाते अहदियत की तरफ, ज़ाते वहदियत की तरफ, ज़ाते वहद की तरफ महबूब परवाज रहंदा रूह के जरिए। लेकिन अपनी नफी करनी पैनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी भी और मासवा अल्लाह दी। जब तक ये नफी हासिल नहीं होंदी कदे कामयाब नहीं हो सकता। कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, नफी हस्ती एक करिश्मा है दिल आगाह का, ला के दरिया में नहा मोती है इल्लल्लाह का। ते जिन्हों इस बात हासिल हो जाता कलबन ज़ाते मौला च डुब जाता हमेशा वास्ते, उन्होंने हक और यकीन का कमाल हासिल हो जाता, फना फिज़ ज़िक्र सुल्तान अज़कार का कमाल हासिल हो जाता, ते ताबत कलबन ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा। लेकिन ये नेमत इश्क मौला ना हासिल होनी है। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं, इश्क बुलंद बाल है रस्मों रहे नियाज से, हुस्न है मस्ते नाज अगर तू भी जवाबे नाज दे। जब तक इंसान सच्चे दिल ना वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन दी रूह हासिल नहीं करता, और मासवा अल्लाह तो हमेशा वास से रुख नहीं मोड़ता है, खलकी असबाब और अरबाब चो नहीं निकलता, इन्हें भरोसे नहीं छड़ता जिहड़े शिरक ने, और नफस दी ख्वाहिशां चो नहीं निकलता, इन्हें ज़िबा नहीं करता, हर ख्वाहिश नूं कदे कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि नफ्से उमारा ही इंसान नूं तबाह बर्बाद करता। फतेह रुबानी च लिखिया कि हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि अपने नफस ते रोह तेरा बच्चा मर जाता है ते तेरे ते क़यामत टुट पैंदी है, और तेरा दीन मरदा है ते तू परवाह ही नहीं करता, और ना ये तो कदे रोना है। फिर आप अगे फरमाते हैं कि अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिश, अपने वजूद की कदूरतां तो सफाई पाने तो बाद अल्लाह वालियां दा साथ इख्तियार कर कि इन्हां दी ताईदा नाल तेरी भी ताईद हो जाएगी, और इन्हां दी बिनाई तो तू भी बिनाई पाएगा। कितनी खूबसूरत गल आपने फरमाई। ते तेरा बच्चा मर जाए, माल का नुकसान हो जाए, दुनिया तेनों तकलीफ दवे, कोई गम टेंशन परेशानी तेनों आ जाए, ते तू पिटना है, ते कदे तेरी नमाज छुट जा जालमा कुत्तिया, कदे तेनों कदे भी तेरा दिल नहीं रोया कि मेरे को अल्लाह की नाफरमानी होवे, झूठ बोलिया कदे भी तेरा दिल नहीं रोया, कदे तेनों तकलीफ नहीं हुई, किसी का दिल दुखाया कदे तकलीफ नहीं हुई, किसी ने जुल्म और ज्यादती की जालिम इंसान कदे भी तेनों तकलीफ नहीं हुई, अल्लाह दी नाफरमानियां करना कदे भी तेनों तकलीफ नहीं हुई, अल्लाह के कानून तोड़ना है कदे भी तेनों तकलीफ नहीं हुई, नमाज़ां छड्डना है कदे भी तेनों तकलीफ नहीं हुई, कुरान दे अमल छड्डना कदे भी तेनों तकलीफ नहीं हुई, अल्लाह दी नाफरमानियां करना कदे भी तेनों तकलीफ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई तकलीफ? तेरा दिल मर गया, तेरा दिल मर गया, इस वास्ते तेनों नमाज छोड़ने की तकलीफ नहीं होती।
झूठ बोलने की तकलीफ नहीं होंदी, बिदअतां दे अमल करने की तकलीफ नहीं होंदी, बुराइयां करने की तकलीफ नहीं होंदी, दुनिया कुत्ती पिछे दौड़न की तकलीफ नहीं होंदी। इसलिए कि तेरा दिल मर गया। अगर तेरा दिल जिंदा होंदा तैनूं सारे कामां दी तकलीफ होंदी कि मेरे को नमाज क्यों छुटी है, सच क्यों छुटिया, खैर क्यों छुटी है, खिदमत खल्क क्यों छुटी है, अल्लाह की मखलूक की भलाई क्यों छुटी है, अमले कुरान सुन्नत क्यों छुटिया, नबी की इतबा क्यों छुटी है। इसलिए कि तेरा दिल बीमार है, तेरा दिल मर गया। अगर तू चाहना है सीधा रास्ता तो फिर सीधा दिल दे लागे हो, किसी अल्लाह वाले के कदमां च हाजिर हो, किसी अल्लाह वाले की सोहबत च बह, सही उलकीदा उलमा और मशाइख की सोहबत च बह, ताकि तेरे अंदरों एक गंद निकल जाए, बीमारी निकल जाए, तेरी रूह बातज परवाज दे काबिल हो जाए, अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने की काबिल हो जाए, हजूरिए खुदा जल्ला शान हो जाए, हाजरी दे काबिल हो जाए, दीदारे मौला दे काबिल हो जाए, तेन सोबत मौला मैसर आ जाए, माइयत मौला मैसर आ जाए, कुर्ब इलाही मैसर आ जाए, और एक कुर्ब दे मुरातब तय करदियां होया अपनी फितरत तक पहुंचण, अपनी हकीकत तक पहुंचण दी तौफीक नसीब होवे। लेकिन चूंकि तेरे अंदर दुनिया की मुहब्बत है, ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी ते शगले खलक जुड़ जा होया, तां ये नेमतां तेरे को खुस गई ने। तो दुनिया के बनाए, गैरां के बनाए नसाबां के पिछे लग्या होया, ते जे तू कुरान के पिछे लगदा, मेरे नबी के पिछे लगदा, ते तैनूं सीधा रस्ता मिल जांदा। इस वास्ते इन्हां गाफिल लोगों को दूर रहो। जिन्हें भी इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने, दजाली कुव्वतां ने, शैतान परस्त है और दजाली लोग है, अफलातूनी लोग है, साढ़े अंदर मौजूद गुमराह फिरके ने, बेअदब व गुस्ताख और 2 नंबर जाली गैर शरा सूफीज़म वाले टोल टमके, नाच गाने, धमालां वाले बाबे, इन्हां जालिम लोगों को दूर रहे। जिहड़े इन्हां को बहिंदे उन्हां तो भी दूर रहे। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमांदे, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। लबासे खिजर में हजारों रहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। सच्चे सिर्फ वो ही ने जिहड़े अल्लाह की दावत दे रहे हैं, अपनी दावत नहीं देंदे, कुरान सुन्नत की दावत देंदे ने, दुनिया तो बेजार होने की दावत देंदे ने, अपने इस खाकी वजूद चो निकलने की दावत देंदे ने, मासो अल्लाह चो निकलने की दावत देंदे ने। और यही खैर का रस्ता, चैन का रस्ता, सुकून का रस्ता, नफे का रस्ता, फलावा का रस्ता, बरकत का रस्ता, खैर का रस्ता। बाकी सारे रस्ते दे अपोजिट है, तबाही और बर्बादी है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए कि इस नफ्स की कैद तो आज़ाद होइए, नफ्से मारा नफ्से मुतमन्ना बनाइए, ये खिलाफ जिहाद अकबर करिए, ला दी तलवार ना मौत तक यदि हर ख्वाहिश ज़िबा करते रहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौफीक रो रो के तलब करते रहिए, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक को मदद दे इंसान कदे कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने इसदा बड़े हकीर पुर तकसीर, माड़े गुनाहगार, कम इल्म इंसान है, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमा, सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्राज़ ते इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां, मुनाफिकां, दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारिस अल्लाह बस ते बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।